Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class that is English for grade 1. Today we are going to start unit 3. That is a beautiful poem with title Let's Clean. I have divided this unit in different parts. In lecture 1, we will cover grammar portion, that is page number 24 and 25 of your book, and we learn the SLO, recognize that people and places have particular names. In lecture 2, we will learn about vowels and consonants, page number 22 and 23 of your book, and the SLO of this lecture will be to recognize and identify consonants and vowels in English alphabets, and trace and draw horizontal, slanted and curved lines, and curves forward and backward. In lecture 3, we will recite and understand the first two stanzas of the poem, page number 20 and 21, and the SLO will be to recite short poems and nursery rhymes with actions. In lecture 4, we'll continue the reciting and understanding of the poem, page number 20 and 21, covering the same SLO to recite short poems and nursery rhymes with actions. Lecture 5 will be about parts of body, page number 26 and 29 of your book, and its SLO will be to recognize and categorize parts of body. Shapes and colors we'll learn later. And we'll cover the other SLO, that is trace and copy familiar words learnt in class. In lecture 6, we will recognize shapes and patterns, page 26 and 27 of your book, and its SLO will be to recognize and categorize shapes and colors, because parts of body we have already done. In lecture 7, we'll cover the listening and speaking part of the chapter, that is page number 28, and its SLO is to demonstrate use of common conversations and dynamics of group oral interaction to take turns. In this way, we'll cover this whole unit. Now, I'm going to tell you few things, that is, I'm just going to brief you about this unit. First of all, its title is Let's Clean. हाँ जी, लेट्स क्लीन से क्या समझ आती है बेटा? जब हम इंग्लिश में लेट्स का टर्म यूज़ करते हैं ना, ये वैसे ही है जैसे उर्दू में हम कहते हैं आओ, लेट्स क्लीन, आओ सफाई करें। और इसका थीम है पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। सफाई करना एक मेहनत का काम है। हैव यू एवर नोटिस्ड, आपकी मामा और घर में जो आपकी मेड आती है वो कितनी मेहनत से सफाई करते हैं। तो जब हम इस चीज़ को खुद करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी मेहनत का काम है। और हम ये क्यों करेंगे? ताकि हमें छोटे छोटे अपने चोर्स, अपने रूटीन के काम खुद से करने आए। और ये सब करने से क्या होगा? We see. Allah says in Quran, verse 108 of ayah number, surah number 9, and Allah loves those who make themselves clean and pure. You see, cleanliness is one of the things जो कि देखने में तो अच्छा लगता ही है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह सफाई करने वालों को, पाक साफ रहने को प्यार करते हैं। अल्लाह ताला पसंद करते हैं उन लोगों को जो पाक साफ रहते हैं। तो हम चाहते हैं ना अल्लाह ताला हमें पसंद करें, अल्लाह ताला हमें प्यार करें। वी शुड बी अमंग दी डियर वंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो एक सीधा सा फॉर्मूला अल्लाह ने खुद हमें कुरान में बता दिया, पाक साफ रहो, राइट। तो इस नज़्म में ये पोएम जो है ये हमें इसी के बारे में बताएगी। इसके साथ आपकी बुक में पेज नंबर 21 पर इसी के हवाले से एक हदीस है। आवर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, क्लेanliness इज़ द हाफ ऑफ द फेथ। फेथ क्या होता है? व्हाट डज फेथ मीन? फेथ का मतलब है ईमान। ठीक है, हमारा ईमान है अल्लाह ताला पर। ये हमारी जो जितनी भी हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितनी भी चीज़ें हम प्रैक्टिस करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये सब हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सफाई है ना, साफ़ सुथरा रहना, ये आपके ईमान का आधा हिस्सा है।
वाह, 50% ऑफ योर फेथ इज क्लीनलीनेस, और बाकी सब चीज़ें मिलकर बाकी हाफ बनाती हैं। तो फिर हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा ईमान, साफ़ सुथरा रहने से हमारा आधा ईमान मुकम्मल होता है, और दूसरा हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं, अल्लाह ताला के प्यारे बंदों में शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम इस पोएम को थोड़ा सा देखते हैं, ये क्या कहती है हमें। क्लीनिंग इज अ फन, अ डे हैज़ बिगन। देखें, पोइटस ने आपको ये सजेस्ट किया है कि जैसे ही आपका दिन शुरू होता है ना, आपने सफाई, आपका फोकस होना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। व्हाट डू वी डू, हम सबसे पहले उठकर अपने टीथ ब्रश करते हैं, वुज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम पाक साफ़ हैं। ना तो हम वुज़ू के बगैर और गंदे कपड़ों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब ने हमें ये सिखा दिया कि हमने अपने दिन का आगाज़ ही सफाई से करना है। ठीक है, और इसमें फ़न का क्या मतलब होता है? फ़न होता है किसी भी चीज़ को आप जो इंजॉय करते हैं। तो जब हम एक काम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं तो क्या वो हमें थकाएगा? क्या हम उससे बोर होंगे? नो। यस, एक चीज़ है, आप अभी छोटे बच्चे हैं तो आप बड़ों के साथ मिलकर ये काम करें, या उस हद तक करें जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। जैसे डस्टिंग है, यू कैन डू दैट, लेकिन शायद झाड़ू लगाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो काम आप कर सकते हैं वो आप खुद करेंगे, और जिसमें आपको दूसरों की हेल्प करना है वो भी आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद है लेट्स क्लीन अप एंड पिक अप द रबिश। रबिश क्या होता है? रबिश कहते हैं फालतू चीज़ें। जैसे आपने एक टिश्यू यूज़ किया, यू जस्ट वाइप योर फेस, अब वो टिश्यू रबिश हो गया क्योंकि वो यूज़ नहीं हो सकता। उसका क्या करना होता है? उसको हमने डस्टबिन में फेंकना होता है, टेबल पे नहीं रखना, फ्लोर पे नहीं फेंकना। ये है सफाई कि जहाँ आप बैठे हैं आपके इर्द गिर्द, आप खुद तो अपनी सफाई रखते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप जहाँ बैठे हैं, आपका घर है, आपका स्कूल है, इवन कोई पार्क है, पब्लिक प्लेस है। बेटा, हमने पिछले लेसन में पढ़ा है ना, ये मुल्क हमारा घर है, तो इसकी सफाई किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हमने ऐसा नहीं केला खाया और उसका छिलका ऐसे थ्रो कर दिया, नो, दैट्स बैड मैनर, तो बहुत गंदी बात है। और अब हम ये सीख रहे हैं कि सफाई और साफ़ सुथरे रहना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने ये जो सारी रबिश है, जो कूड़ा वगैरह है, उसको कूड़ादान में, बिन में फेंकना है। लिटर मस्ट नॉट बी सीन, लेट्स कीप आवर क्लासरूम क्लीन। लिटर क्या होता है? देखिए, एक तो सफाई है, आप सफाई करते हैं, दूसरा उसके साथ डिसिप्लिन है, चीज़ों को उनकी मुनासिब जगह पे रखना। सफाई का मतलब ये नहीं है कि अब आपके टॉयज़ हैं, उनको आपने डस्टिंग कर ली और ऐसे बेड पे फैला दिया, तो बैड, वो तो उसकी जगह नहीं है। तो चीज़ों को मुनासिब जगह पर ऑर्गेनाइज तरीके से रखना भी सफाई का हिस्सा है। ठीक है, इनको इधर उधर नहीं फैलाते। फिर वो कहते हैं जी क्लीन अप एवरीवेयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपना घर, अपनी ज़ात, अपना बेडरूम, नो बेटा, सफाई हमने हर जगह, अपने प्यारे वतन की, अपने घर की, हमारे जो घर के आगे स्ट्रीट है, ये नहीं अपने घर से आपने सफाई की और बाहर मैस कर दिया, दैट्स बैड, है ना। और अगर कोई दूसरा भी करे तो उनको समझाएं कि ऐसा नहीं करते, बड़े प्यार से। ओके, और फिर क्या है? फिल अप द बिन, दैट्स हाउ यू विन। फिल अप द बिन यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया कि जितना ज़्यादा, देखें, जितना ज़्यादा आपका बिन फिल अप है, यानी जिसमें आप कूड़ा फेंकते हैं, आपका कूड़ादान फिल है, इसका मतलब है बाहर की जगह उतनी ही साफ़ है। तो जितना ज़्यादा आप कूड़ा उसकी प्रॉपर जगह पर फेंकेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके इर्द गिर्द सफाई होगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। अब जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको रिसाइट करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी, हम इसको एंजॉय करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ डिस्कशन। कल हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम, टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।